Once again, very good morning to all of you. In last week in mathematics of 9th class, we have completed the 5th chapter in which we have studied about the Euclid postulates, and after that we have solved the exercise 5.1 and 5.2. In 5.2 we have discussed about the Euclid 5th postulates. You can say that one advanced version in which we can see that Euclid 5th postulates can be write more than one forms. So we have discussed about all these things into the last chapter. Now in chapter number 6 we need to go for the geometrical mathematics. As I told you that from 5th to 10th chapter, and 11th also, from 5th to 11th chapter we need to go for the geometrical mathematics, which plays very important role, and it is very, you can say that easy chapters. So if you will study very carefully, then you will understand everything in this chapter. Like in 6th chapter there is the angles and lines and all these things we have to study. So all of you know that angles and lines before going about the angles, line and line segment you have studied. Okay, so if we know about the line and line segment, I want to tell you that A and B, if you have a given AB is a line, then it is denoted by in this form A and B. So दो पॉइंट को मिलाने की अगर अपन बात करें तो ये जो होता है ये एक लाइन होती है, ठीक है। और अगर इसमें AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर गिवन है, देन आप ये कहेंगे कि ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। ओके, इफ यू हैव गिवन द फाइनाइट distance of a particular line, then you will say that it is a line segment. Okay, and you have not given the finite distance for the particular line, then you will say that it is a line. Okay, now we need to go for the points. Then points जो होते हैं, simply अपन ने कहा A, B, these are the points. Okay, always if you need to require to represent the position of anything in plane, okay, plane के ऊपर अगर आप किसी भी चीज को डिनोट करते हो तो उसको हम कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स। ओके, अब बात ये आती है कि ये पॉइंट्स जो होते हैं वो कोलिनियर होते हैं, तो क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है कि द पॉइंट्स लाइज ऑन अ सेम लाइन। ओके, इफ द पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन लाइक ए, बी, सी, सो ये P एंड Q एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये तीन पॉइंट जो है वो लाई करते हैं। ओके, so whenever you will see that there will be the 3 points A, B and C lies on this line PQ, you will be able to see that these points are the collinear points. Okay, if you want to know about the line, then I have explained over here. If you want to know about the line segment, then I have also told you, and if you want to know about the collinear points, then I have told here. Okay, the points if lies on the same line, then they will be collinear points. Okay, now we need to go for the angles. Actually दो लाइन सेगमेंट जो होते हैं वो आपस में एक ही पॉइंट यानी एडजेसेंट पॉइंट। व्हाट डू यू मीन बाय द एडजेसेंट पॉइंट? एडजेसेंट पॉइंट का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट से अगर दो लाइन निकलती है तो वो पॉइंट क्या कहलाता है? एडजेसेंट पॉइंट। ओके, सो अब हम बात करते हैं एंगल्स की। ओके, you have this line and this line. This is the point A, this is B and this is C. Okay,
So if you have given the 3 point, or you can say that 2 line, okay, and these both are the lines differentiated by this difference, or you can say displacement. ठीक है, अगर दो लाइन आपके पास में है और ये दोनों लाइनें आपस में डिफरेंस इनका कितना है, थीटा. ओके, अगर ये थीटा नहीं हो तो ये लाइन इसके ऊपर आ जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी. ठीक है ना. ये लाइन जो AC है वो AB से कितना डिफरेंस रखती है, थीटा. ओके, so this is the displacement between these two line and it is known as the angle. Okay, this angle can be vary from 0 to 360 degree. Okay, ये जो एंगल होता है ये हमेशा जो है वो 0 से 360 डिग्री तक हो सकते हैं. ये चीज क्लियर है सबको. अब हम बात करते हैं कि कौन सा एंगल जो होता है वो कितना होता है या कैसे होता है. तो यहाँ पे अपन इन एंगल्स को जो 0 to 360 है, ये एंगल्स को अपन डिवाइड करें अगर, तो मोस्टली जो है वो एंगल्स ये 4 टाइप्स के हो सकते हैं. ओके, एक जो होता है वो आपका होता है 0 से 90 डिग्री. ठीक है ना. और सॉरी, एक होता है 0 से बड़ा और 90 से छोटा. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल. ओके, तो ये फर्स्ट हो गया आपका, जिसमें क्या होता है, एंगल 0 से बड़ा होता है बट 90 से छोटा होता है. सेकंड अपन बात करेंगे तो ये कितना होता है, 90 डिग्री. अगर एंगल 90 डिग्री है तो ये क्या हो गया, राइट एंगल. ठीक है. थर्ड अपन बात करें तो थर्ड टाइप कौन सा होता है, जिसमें 180 से क्या होना चाहिए, सॉरी 90 से बड़ा होता है और 180 से लेस होता है. इसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज. और जो फोर्थ है वो होता है 180 का, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल. ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट होता है. तो मोस्टली जो एंगल्स होते हैं, या फिर अपन बात करें तो ये जो एंगल्स होते हैं, इनको अगर आप इस क्वाड्रेंट के थ्रू डिनोट करते हो तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जो है उसके ऊपर जो एंगल होता है वो कितना होता है, ओनली 180. ओके, तो अगर हम बात करें तो नॉर्मली जब अपन पढ़ते हैं तो अपन एक लाइन को पढ़ते हैं. व्हाट वी स्टडी ओनली अबाउट द वन लाइन, and one line always cover only for the 180 degree. In another direction if you will go, then 180 in this direction and 180 in this direction. Okay, so total the sum of angles is 360. Okay, and these are the quadrants in which you can say that this is the 90, this is the 90, and this is the 90, and this is also 90. So the total sum of these all quadrants angles will be 360. तो एंगल जो होते हैं वो हमेशा 0 से 360 तक वेरी होते हैं. ठीक है, 0 से कम नहीं हो सकते हैं और 360 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं पेयर्स ऑफ एंगल्स. ये एंगल्स जो थे इनका पता चल गया, एंगल्स के टाइप्स का पता चल गया. नाउ वी नीड टू गो फॉर द पेयर्स ऑफ एंगल्स, यानी कि दो एंगल का एक पेयर होता है और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या क्या होती है.
ओके, सो पेयर्स ऑफ एंगल्स की बात करो आप, मोस्टली सिंपली अगर अपन बात करें एग्जांपल के लिए, तो आपके पास में ये एंगल जो हैं दो, इसको मैं कहूं P, ये Q, ये R एंड ये S। तो एंगल P Q R एंड एंगल S Q R, ये एक पेयर ऑफ एंगल होता है। ओके, नाउ इफ यू वांट टू नो अबाउट द डिग्री, लाइक दिस इज द θ1 एंड दिस इज द θ2, इनके अंदर जो है वो मेंसुरेशन अपने को नहीं दिया हुआ है कि कितना है ये, लाइक ये कोई फाइनाइट वैल्यू अपने को नहीं दी हुई थी, अपन ने सपोज किया है, बट दिस इज द पेयर ऑफ एंगल। ओके, अब इसमें क्या होता है कि एंगल्स जो होते हैं वो पेयर ऑफ एंगल्स के अंदर वो इक्वल होते हैं। कब? जब ये एग्जांपल आपके पास में ये दो एंगल का जो पेयर होता है ये वर्टिकली अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, ये चीज पता है। इसके अलावा अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, लाइक दीज आर द लाइंस एंड दिस इज लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग टू दिस, देन दीज एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, यानी कि A इक्वल टू B। ओके, तो सिंपली अगर आप बात करो कि A इक्वल्स टू B कैसे आता है, तो यहाँ पे आपके पास में A इक्वल्स टू B जो है वो इक्वल है कब? जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो वहां पे जो ये एंगल होते हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अपन इनको बोलते हैं, और ये क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। वैसे ही ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ये भी आपस में इक्वल होते हैं। दीज आर कॉल्ड द, यू कैन से, पेयर्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, अब इसमें जो एग्जाम्स है और उसके बाद में जो थ्योरम्स है वो अपने को पढ़नी है। तो थ्योरम्स में जो सबसे पहली थ्योरम है वो ये है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन वर्टिकल एंगल्स आर इक्वल्स। तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब इस पे बेस्ड जो एग्जांपल्स हैं उनमें से एक एग्जांपल अभी सोल्व कर रहे हैं अपन, बचे हुए आप घर पे आज करना। ठीक है, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो P R S एंड Q ये गिवन है। ठीक है, अब इसमें आपको जो रेशियो दे रखा है वो POR और ROQ, एंगल POR रेशियो एंगल ROQ इक्वल टू 5:7, ये अपन को गिवन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अपन जाते हैं तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि POR कौन सा है, यानी POR यानी ये एंगल एंड ROQ यानी ये जो टोटल एंगल है इसका जो रेशियो है वो आपको गिवन है। ठीक है, तो यहां पे अपने को करना है कि वी नो दैट एंगल POR प्लस एंगल ROQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, बिकॉज POQ
POQ क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है POQ। ये POQ एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये टोटल एंगल कितना बनेगा? 180। अब हमें क्या करना है, इसमें से फाइंड करनी है वैल्यू। तो POR इक्वल्स टू क्या आएगा? इजिकल्स टू आपका आ जाएगा 5/5 + 7 × 180। जब भी कोई भी चीज रेशियो में गिवन होती है, उसको सोल्व करने के लिए जो वे होता है उसमें ये होता है कि जो रेशियो गिवन है वो ऊपर आता है, उसका सम नीचे आता है, और जिसमें से है वो यहाँ मल्टीप्लाई में आता है। ओके, तो यहाँ पे सम कितना हो गया इसका? 5/12 × 180। ये कितना हो जाएगा? सही है। इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75। ओके, अब एक तरीका ये है जिसमें आपके पास में एक एंगल आ गया, तो दूसरा एंगल जो है वो ROQ कैसे निकालोगे आप? 180 - 75 = 105। ओके, क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल का सम कितना था? 180। तो दोनों एंगल में से एक एंगल जब अपन ने फाइंड कर लिया जिसमें आपकी वैल्यू आ गई 75, उसको आपने क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड देन सेकंड एंगल की वैल्यू आ जाएगी आपकी 105। एंड व्हाई वी हैव सब्ट्रैक्टेड? बिकॉज वी नो दैट दिस POQ इज टोटल 180 डिग्री। You have calculated the POR which is the 75 degree. So once you have calculated the 75 which is POR, then remaining will be 180 minus POR, and remaining 180 minus POR means 180 minus 75, then it will be ROQ, and ROQ will be 180 minus 75 equal to 105. Okay, so all of you must need to start the exercise 6.1, and before doing the 6.1 you need to complete all the examples which is given in your book. There are 3 examples, one I have solved over here, and remaining 2 examples you need to solve at home. Okay, and tomorrow we will do the exercise 6.1. So thank you so much for being with me. Have a great day.